Hello, class 2. Good morning. How are you all? Fine. So, class 2, in our last class, we have started English course book chapter number 4, that is Toto the monkey, and it is the story about a monkey that how it came to a family. Okay, and in the last class only I had told you about the appearance of the monkey, that how it appeared, and when it came to the family. And how it came to the family? It came to the family when grandfather bought him from a Tonga driver with a sum of 5 rupees. Okay, and when he brought it to the family, the monkey was kept a secret because grandmother didn't like it at all. Okay, because grandfather was fond of bringing animals to the home, and he had a little zoo in his house. Okay, so every time when grandfather used to bring a new animal, grandmother was very fussed, है ना, वो एकदम चिढ़ जाती थी. तो क्योंकि ग्रैंडमदर को नहीं बताना था, इस वजह से जो मंकी था उसको ग्रैंडफादर ने छुपा कर रखा पहले, कि जब ग्रैंडमदर का अच्छा मूड होगा तो हम उन्हें बता देंगे. ओके, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे when Toto is the name of the monkey. When Toto was kept in a room, what did he do? He scratched the wallpaper, isn't it? And there was a blazer kept in the room, and it was hung onto the wall, and that monkey tore him into pieces. उस ब्लेज़र को भी मंकी ने फाड़ दिया, है ना, उसे एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए. जब ग्रैंड फादर और ऑथर उस छोटे से रूम में पहुंचे, ओके, इट वाज अ क्लोसेट. ओके, so then what did they see? They saw that the blazer was torn into pieces. Okay, the wallpaper were scratched and the peg was wrenched off. The writer was very upset, but the grandfather was still smiling, and he was saying that Toto is a smart monkey. Okay, अगर उसे थोड़ा सा टाइम मिलता तो शायद वो ब्लेज़र के जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर एक रस्सी बनाकर विंडो से बाहर कूद गया होता, है ना. देन ऑन द सेम डे ग्रैंडफादर और ऑथर ने क्या किया? Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived together very sociably. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet dog, my pet goat. See, here it is written, I am on page number 34. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. When Toto was transferred to a room where all these animals were kept, okay, grandfather and the writer thought that Toto would stay with them peacefully, but Toto did not allow anybody to sleep.
टोटो ने तो किसी को सोने ही नहीं दिया. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. फिर ग्रैंडफादर ने ये सोचा, क्योंकि ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे सहारनपुर के लिए निकलना था, तो ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि मैं टोटो को साथ ही लिए चलता हूँ, बिकॉज ही वॉज नाउ अवेयर ऑफ टोटो दैट टोटो वुड बी वेरी नॉटी. टोटो घर में बहुत बदमाशी करेगा, इसलिए ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि मैं उसे अपने साथ सहारनपुर लेकर चलता हूँ. अब आगे देखो कि सहारनपुर उसे कैसे लेकर गए. ग्रैंडफादर उसे सहारनपुर कैसे लेकर गए. नाउ अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. And the writer was also about to go with him, but he could not go. A big black canvas kit bag was provided for Toto. और ग्रैंडफादर ने एक बड़ा सा बैग टोटो के लिए लिया, जिसमें कि वो टोटो को रख कर ले जा सके. This with some straw at the bottom became his new abode. And बैग में क्या किया उन्होंने, कुछ स्ट्रॉ रख दिया. स्ट्रॉ का मतलब जानते हो क्या होता है. स्ट्रॉ मीन्स सूखी घास. यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ सूखी घास. ओके, और इन हिंदी इट इज कॉल्ड पैरा. ओके, सो दादाजी ने क्या किया, एक बैग लिया, बैग में स्ट्रॉ डाले, है ना, उसके ऊपर फिर टोटो को रखा. When the bag was closed, और उसके बाद फिर बैग को क्लोज कर दिया. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making a bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब वो जो बैग था, it was closed, और टोटो के लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि वो उस बैग को कुछ भी करे. मीन्स लाइक उससे बाहर निकले, अपने हाथ पैर बाहर निकाले, बिकॉज इट वॉज टोटली लॉक्ड, इट वॉज टोटली क्लोज्ड. द ओनली थिंग दैट टोटो कुड डू वॉज ही वॉज जंपिंग फ्रॉम इनसाइड. वो थोड़ा थोड़ा अंदर से जंप करता था बैग में, तो बैग जंप करता हुआ दिखता था. एंड ही वॉज रोलिंग हिज बॉडी, तो बैग भी रोल करती हुई दिखती थी. और इसे लोग बड़े ध्यान से देखते थे कि कुछ तो क्यूरियस, यानी कि कुछ तो अलग हो रहा है. एंड नाउ the grandfather was at Dehradun railway station. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Now, अभी तक तो Toto was inside, okay, but जैसे ही दादाजी ने टिकट कलेक्टर को टिकट दिखाने के लिए जब टाइम आया, तो टोटो ने क्या किया पता है. टोटो अपना हेड को बैग से बाहर निकाला एंड ही गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. और उसने टिकट कलेक्टर को एक स्माइल दी. ओके, The poor man was taken aback, और उसे देखकर टिकट कलेक्टर was in a shock, और वो देखकर पीछे हो गया, है ना, as if he has seen something
क्यूरियस समथिंग मीन्स वो देखकर एकदम से शॉक में आ गया. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." है ना. और उसे देखते हुए टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से कहा, सर आपके पास एक डॉग है. सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. और क्योंकि आपके पास एक डॉग है तो आपको इसके लिए भी पे करना होगा. पे करने का मतलब है कि जैसे आपने अपने लिए टिकट ली है, आपको अपने डॉग के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा. अब बताओ, वॉज इट अ डॉग इन द बैग? क्या बैग में कोई डॉग था? नो, इट वॉज अ मंकी. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified. So what happened? जब टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग कह दिया तो ग्रैंडफादर ने भी बैग से टोटो को निकाला, ये दिखाने के लिए कि ये डॉग नहीं है, इट इज़ अ मंकी. And it is given that it was neither a dog and nor a quadruped. Here the word is quadruped. मतलब ये कि anyone or anything with 4 legs. Toto was classified a dog. See, class 2, the story is little big. It is a lengthy story, as I have told you in the previous part also. So, Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was sum handed over as his fare. And टोटो के लिए दादाजी को 3 रुपीज़ फेयर के लिए देने पड़े. फेयर का मतलब होता है किराया. ये टिकट कलेक्टर ने 3 रुपीज़ टोटो का भी दादाजी से ले लिया. नाउ देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." Okay. So, जब grandfather से ticket collector ने 3 रुपीज़ ले लिए टोटो के लिए, तो grandfather ने क्या किया कि अपने पॉकेट से एक छोटा सा टॉर्टोइज निकाला और टिकट कलेक्टर को दिखाया, बोला कि क्या आप इसके लिए भी फेयर लेंगे? क्योंकि आप सभी एनिमल्स के लिए फेयर ले रहे हो तो इसके लिए मुझे कितना पे करना है. देन द टिकट कलेक्टर what did it do? It is written here. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his 4 fingers. और टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइस को बड़े ध्यान से देखा और उसे उंगलियों से ऐसा टच किया. ओके. एंड कहा कि नो 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 फेयर फॉर दिस सिंस इट इज नॉट अ डॉग. और टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर को चिढ़ाते हुए कहा कि नहीं, ये डॉग नहीं है ना, इसीलिए इसका कोई भी फेयर नहीं लगेगा. नाउ when Toto was finally accepted by grandmother, so it is the incident that took place when grandfather went to Saharanpur. Okay, now he came back and Toto was finally accepted by the grandmother. अब जब वो वापस आए सहारनपुर से, तब ग्रैंडमदर को टोटो के बारे में ग्रैंडफादर ने बता दिया. एंड Toto was finally accepted by grandmother. He was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. और जब
मदर को भी टोटो के बारे में पता चल गया, तब फाइनली टोटो को स्टेबल में रखा गया, है ना। एंड हिज कंपेनियन वॉज नाना, एंड नाना वॉज अ डोंकी. लाइक Toto was a monkey, Nana was a donkey. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. उसके बाद जब उसको पहले ही दिन ग्रैंडफादर देखने के लिए गए कि वो वहाँ ठीक से है या नहीं है. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. Now, when grandfather went into the stable to visit Toto as if he was comfortable or not, he saw that there was a fight between Nana and Toto. And grandfather ने कहा कि फिर उसके बाद वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने. A great treat for Toto during cold winter's evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath. Then after that, when winter came, Toto was given a bowl of warm water. एक बड़ा सा बाउल में टोटो को गर्म पानी दिया जाता था फॉर टेकिंग बाथ. उसको और उस गर्म पानी को भी टोटो पहले टच करता था. किस लिए टच करता था? टेम्परेचर चेक करने के लिए कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना. और जब उसे लगता था कि नाउ इट इज़ अ गुड टेम्परेचर टू गेट इन, तब वो उसके अंदर जाता था. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the another, as he had seen me doing. और यहाँ राइटर ये कहते हैं कि जिस तरह से मैं पहले एक पैर अंदर लेता था, फिर दूसरा पैर अंदर करता था, उसी तरह से टोटो भी मुझे देखकर वैसा ही करता था. Until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. और टोटो को पता था कि नहाते कैसे हैं, ठीक है. So Toto was doing the same thing, that he would take a soap and he was rubbing the soap all over his body. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और वो उस बॉल में तब तक रहता था जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए. और जैसे ही पानी ठंडा होता था, वो किचन की तरफ भागता था, है ना. और किचन फायर की तरफ भागता था ताकि वो वहाँ पर जाके अपने आप को ड्राई कर सके. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर कोई ऐसा करते हुए टोटो के ऊपर हंस देता था, तो उस दिन वो नहाना ही नहीं चाहता था, ठीक है. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. और एक दिन तो टोटो ने हद ही कर दी. उसने क्या किया पता है? एक बड़ा सा केटल जो है ना, फायर पे था. एंड व्हाट इज केटल? केटल इज अ kind of utensil which is used to
प्रिपेयर टी। ठीक है, टी प्रिपेयर करने के लिए एक केटल जो था फायर पे चढ़ा हुआ था। उसे लगा कि ये सिंपल वाटर है ना। उसने क्या किया, उससे शरारत सूझी या फिर उसे लगा कि ये नहाने वाला पानी है। सो व्हाट डिड ही डू, ही जस्ट टुक आउट द लिड और उसके अंदर जाकर बैठ गया। ओके, एंड ओनली just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from a open kettle। और सिर्फ उसका जो हेड था वो केटल से बाहर था। This was just fine for a while until the water began to boil। और टोटो को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था दैट जिस केटल में मैं बैठा हुआ हूँ वो फायर के ऊपर है। पहले पानी थोड़ा सा गर्म था, लेकिन उसके बाद पानी का टेम्परेचर क्या हुआ, वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पानी तो फायर के ऊपर था ना। Until the water began to boil, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again। और उसके बाद टोटो ने क्या किया, जैसे ही उसे थोड़ा गर्म लगता था ना, वो ऐसे करके अपना जो हेड है वो केटल के बाहर करता था। लेकिन जैसे ही वो केटल के बाहर करता था अपने हेड को, तो उसे ठंड लगती थी, तो फिर वो केटल के अंदर चला जाता था, फिर बाहर आता था, फिर अंदर चला जाता था, फिर वो अपने हेड को ऊपर करता था, फिर अंदर चला जाता था। But finding it cold outside, sat down again। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। और इतने में क्या हुआ, ग्रैंडमदर आई तो उसने देखा, अरे ये क्या हो रहा है। ग्रैंडमदर ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है। फिर उसे जल्दी से उस केटल से बाहर निकाला। अगर उसे केटल से उस दिन ग्रैंडमदर ने बाहर नहीं निकाला होता तो वो तो उसमें ही पूरा पानी में वो क्या हो जाता, बॉयल हो जाता, या फिर कह सकते हैं कि जल जाता। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। और यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि वो ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पर थोड़ी सी बदमाशी होती है, वो पार्ट टोटो का पूरा बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था। इसीलिए तो टोटो इतनी बदमाशियाँ करता था। He was always tearing things to pieces whenever one of my aunts came near him। He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। और वो हर चीज़ों को ना क्या करता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। और एक आंट थी ऑथर की, जो जब भी आती थी तो वो उनकी जो ड्रेस है उसमें एक होल ज़रूर करता था। वन डे एट लंच टाइम, और एक दिन की बात है, लंच टाइम था। व्हाट हैपेंड, सी वन डे एट लंच टाइम, लार्ज डिश ऑफ पुलाव। एक दिन की बात है, लंच टाइम में पुलाव का एक बड़ा सा डिश था, stood in the center of the dining table। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face। When grandfather arrived, Toto picked up the dish and of pulao and made his exit through a window। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, लंच का टाइम था, है ना, और एक डिश में पुलाव रखा हुआ था। ठीक है, जैसे ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुँचे, सब क्या देखते हैं कि टोटो आराम से बैठ के पुलाव खा रहा है। और उसके बाद ग्रैंड मदर को गुस्सा आया और उन्होंने ना चिल्लाया टोटो के ऊपर। उसके बाद पता है टोटो ने क्या किया, ओहो, टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। और टोटो ने ग्रैंड मदर के ऊपर एक प्लेट फेंक दिया। तभी एक और आंट जो है टोटो की तरफ भागी, और जब वो दूसरी आंटी टोटो की तरफ भागी तो उसने क्या किया, टोटो ने वो आंटी के ऊपर एक ग्लास पानी का दे मारा। उसके बाद ग्रैंडफादर आए। जैसे ही ग्रैंडफादर आए, टोटो ने क्या किया, टोटो ने वो प्लेट उठाया और विंडो से बाहर भाग गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि टोटो एक जैक फ्रूट के
पेड़ पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में वही पुलाव का डिश था. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और वो वहाँ पर पूरे आफ्टरनून रहा उसी जैक फ्रूट के ब्रांच पे और धीरे 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 एक एक दाना करके उसने पुलाव को फिनिश किया. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at her, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जब पुलाव ख़त्म हो गया तो टोटो ने क्या किया पता है? ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए. क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर शाउट किया था. इस वजह से उसने क्या किया, जब पुलाव ख़त्म हो गया तो उसने वो प्लेट को नीचे की तरफ फेंक दिया. और जब प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए तो ग्रैंड मदर की तरफ देख के उन्हें चिढ़ाने के उनकी तरफ ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए वो उनकी तरफ देखकर हंसने लगा जब प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent losses of dishes, clothes, curtains and wallpaper. और यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि obviously इट वॉज वेल नोन नाउ. उसके बाद सबको समझ में आ गया कि टोटो वैसा पेट नहीं है जिसको घर में रखा जा सके, है ना. बिकॉज दे वेयर बियरिंग लॉस ऑफ फ्रिक्वेंट लॉसेस. उनके परिवार में, उनकी फैमिली में बहुत नुकसान होता था. बिकॉज टोटो वॉज टू नॉटी एंड ही वॉज वट ही वॉज डूइंग, ही वॉज वो सब चीज़ को नुकसान कर रहा था, चाहे वो प्लेट हो, कर्टन्स हो, वॉलपेपर्स हो. और उसके बाद फाइनली ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो को हम अब नहीं रख सकते. एंड फॉर दैट व्हाट डिड ही डू? सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम. और उसके बाद ग्रैंडफादर ने उसी टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा जिससे उन्होंने टोटो को खरीदा था. और इस बार टोटो को ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को वापस सेल कर दिया मतलब बेच दिया. और जैसा कि ग्रैंडफादर ने उन्हें सिर्फ 5 रुपीज़ में ख़रीदा था, है ना, इस बार ग्रैंडफादर ने ओनली 3 रुपीज़ में उसे बेच दिया. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टोटो द मंकी. And the story is written by Ruskin Bond, and Ruskin Bond himself is the part of the story that what happened when a monkey Toto came into their family. And after keeping him for some days, the grandfather decided that it is better to send Toto back to Tonga driver. So this was today's class 2. Have a nice day.